Assalamu alaikum students. Our today's topic of discussion is nested loops. Nested loop is basically a combination of loops working together. In simple words, you can define nested loop as a loop within a loop is called nested loop. Nested loop basically uh, has an external loop, which is sometimes called outer loop, and an internal loop, which is generally called inner loop. So nesting can be of any level, any number of loops can be written inside the other loops. The only difficult thing is it makes your program complex. So larger the nesting, the larger the increased complexity you have to face. Otherwise, it is very effectively used. You can use a loop within another loop. So for example, you want to use while loop as outer loop and for loop as inner loop, or vice versa. So any loop can be used as outer loop, or any loop can be used as inner loop. There is no restriction that which loop should be inner, which loop should be outer. So to understand this further, we have to look at the syntax of nested loops. So first of all, syntax. The syntax of nested loop is as follows. You have an outer for loop with its counter variable initialization, its terminal condition, and its increment or decrement statement. Then you start the body of the outer loop with this curly bracket, and inside its body you have written another for loop with its counter variable initialization, with its terminal condition, and with its increment or decrement statement. And here you start the body of the inner loop, which can have any number of statements. So at this point, body of the inner loop close, and with this curly bracket, body of the external or the outer loop close. So this is the body of outer loop, and this is the body of inner loop. So for its better understanding, we have an example over there of using two for loop as nested loops. So example is very simple. We have taken two variables I and j. We start I from 1, and it can be up to 2. It can be either less than 2 or equal to 2. And each time it executes, we increment it by 1. In the inner loop, for j is equal to 1, j less or equal to 3, j plus plus. So counter variable is j, which is initialized from j is equal to 1. J is less or equal to 3. So this is the terminal condition. So j की जो value है that can be 1, 2 or 3, and the increment is adjusted as one step increment. j की value जब भी vary करेगी तो वो one step से vary करेगी. And then आपने एक cout statement लिखी है. Cout statement में डबल कोटेशन में आपने outer लिखा है, उसके आगे आपने उसके जो काउंटर वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कराया, आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल. फिर आपने डबल कोटेशन में इनर लिखा है और उसके सामने आपने उसका जो काउंटर वेरिएबल j है उसको डिस्प्ले करवाया. तो यहाँ पे बॉडी के लिए करली ब्रैकेट यूज नहीं की गई. वो इसलिए है कि सिंगल स्टेटमेंट आपने लूप की बॉडी के अंदर लिखी है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं. तो ये जो सेकंड फॉर लूप है ये फर्स्ट लूप की बॉडी के अंदर मौजूद है, और ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये सेकंड लूप की बॉडी के अंदर मौजूद है. तो अब इसकी वैल्यूएशन करते हैं कि किस तरह से काम करेगा.
तो पहले एक्सटर्नल लूप को देखते हैं। एक बात शुरू से ध्यान में रखेंगे, एक्सटर्नल लूप अगर एक बार चेंज होगा तो इंटरनल लूप मुकम्मल जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अपनी तमाम वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होगा। फिर कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल लूप के पास आएगा, आउटर लूप के पास आएगा, उसमें फिर एक स्टेप की चेंज आएगी, इंटरनल लूप उस एक चेंज के लिए दोबारा से कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। फिर जब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से आउटर लूप के पास कंट्रोल आएगा, उसमें फिर से चेंज आएगी, उसकी नेक्स्ट चेंज के लिए फिर से इंटरनल लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसको बेहतर देखा जा सकता है अगर हम इस एग्जांपल को ही अंडरस्टैंड कर लें तो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, आउटर लूप के अंदर आई लेस आर इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो लूप की कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल लूप की बॉडी में चला जाएगा। तो लूप की बॉडी में एक और लूप मौजूद है, फार लूप, जिसका काउंटर वेरिएबल है जे, जिसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है और उसने मैक्सिमम 3 तक जाना है, जे प्लस प्लस उसका इंक्रीमेंट है। तो पहली बार जब इंटरनल लूप चलेगा तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो स्क्रीन पे आउटर के सामने भी 1 प्रिंट होगा, इनर के सामने भी 1 प्रिंट होगा। उसके बाद इनर लूप जो है वो पूरे का पूरा, चूंकि मैंने जैसे आपको कहा था एग्जीक्यूट होना है, तो इनर लूप में जे की वैल्यू में 1 ऐड होगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के लिए हम कंडीशन को चेक करेंगे, 2 इज लेस आर इक्वल टू 3। जी हाँ, इंटरनल लूप की कंडीशन ट्रू है, तो 2 जो है वो जे की जगह पे प्रिंट होगा। तो सेकंड लाइन में आप देखें आई की वैल्यू स्टिल 1 ही है, जे की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो 2 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट सी आउट जो है प्रिंट होगी तो जे की वैल्यू में फर्दर 1 ऐड हो जाएगा। तो जे की वैल्यू में जब 1 ऐड होगा तो 2 के बाद इसकी वैल्यू 3 बनेगी। तो 3 के लिए भी हमारी कंडीशन इनर लूप की करेक्ट है, तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह 3 बार सी आउट स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हो चुकी है, जिसमें आई की वैल्यू फिक्स है, जे की वैल्यू जो है वो 3 बार चेंज हुई है। तो इनर लूप मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता था, तो मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो गया। सो ईच टाइम द आउटर लूप चेंज, इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली। तो जैसे ही ये जो इनर लूप है ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3 के बाद अगर आप इसमें 1 ऐड करें तो 4 होगा, इसकी कंडीशन फॉल होगी, तो इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो आई की वैल्यू जो है वो 1 स्टेप इंक्रीज करेगी, आउटर लूप का इंक्रीमेंट जो है वो एक्टिव होगा। तो आउटर लूप में आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, तो आउटर लूप दोबारा चलेगा। आउटर लूप दोबारा चलेगा तो आपकी ये सारी की सारी जो इनर लूप है इसमें फिर से पूरे का पूरा चलना है। तो ये देखें जी, आउटर के सामने 2 प्रिंट हुआ, इनर लूप में जे पहले 1 हुआ, फिर जे 2 हुआ, फिर जे की वैल्यू जो है वो 3 हुई। तो आउटर लूप सिर्फ 2 बार चला है, इनर लूप हर बार जब आउटर लूप चेंज होता है तो 3 टाइम चलता है, तो टोटल 6 रेपिटेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इस तरह से नेस्टेड लूप्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसके फ्लो चार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज करते हैं जी, उसके बाद इनिशियलाइज करते ही हम पहले आउटर फॉर लूप की कंडीशन पर जाते हैं। आउटर फॉर लूप की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इनर फॉर लूप पे चले जाते हैं, जाके उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। अब अगर इनर फॉर लूप की कंडीशन भी ट्रू होती है तो इनर फॉर लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उनके बाद जो इनर लूप का काउंटर वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन एवेल्युएट होगी, फिर भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस तरह ये जो आपके पास लूप है ये चलेगा जब तक कि कंडीशन 2 जो है वो ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन 2 जो फॉल होती है तो ये पाथ जो है ये चेंज हो जाएगा। फॉल के बाद जो है वो आपका जो इनर लूप है ये एंड हो जाएगा, एंड ऑफ पाथ।
और उसके फौरन बाद क्या होगा, जो फर्स्ट लूप था आपका, आउटर लूप जो था, उसका जो काउंटर वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने लिखा होगा वो परफॉर्म होगा। उसके बाद उसकी फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से सेकंड लूप में कंट्रोल चला जाएगा, सेकंड लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल और अनलेस कंडीशन 1 जो है आउटर लूप की ये फाल नहीं होती, जो कि फार लूप जो एक्सटर्नल आपने लगाया था उसको टर्मिनेट करेगी। तो जब तक एक्सटर्नल लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इंटरनल लूप बार बार पूरे का पूरा रिपीट होता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल होगी एक्सटर्नल लूप की, और तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल या आउटर लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि उसकी टर्मिनल कंडीशन जो है वो अचीव हो गई। ठीक है, तो इस तरह प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो नेस्टेड लूप से बाहर चला जाएगा। तो ये इसका जो एक फ्लो चार्ट था हमारे सामने। अब इसी फ्लो चार्ट को ध्यान में रखते हुए, सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसकी आउटपुट बिल्कुल वही है जो आपने फॉर लूप के जरिए अचीव की थी। यहाँ पे वही काम आपने नेस्टेड व्हाइल लूप को इस्तेमाल करके किया है। टास्क सेम है, आउटर लूप में 2 बार चलना है, इनर लूप में 3 बार चलना है। उसी तरह वही सी आउट स्टेटमेंट है। तो ये नेस्टेड जो आपके पास लूप्स हैं, इसमें आप किसी भी लूप का किसी के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। वाइल में फार यूज हो सकता है, फार में वाइल यूज हो सकता है, वाइल में वाइल यूज हो सकता है, फार में फार यूज हो सकता है, और डू वाइल में फार यूज हो सकता है, एंड सो ऑन। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप किसको इनर रखें और किसको आउटर लूप के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करें। डिपेंड करेगा कि आपके प्रोग्राम की लॉजिक किस तरह अचीव हो सकती है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू अचीव द टास्क यू वांट टू परफॉर्म। हाँ, अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं जी। एग्जांपल है हमारी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ऑफ नंबर विदाउट रिपीटिंग देम। मिसाल के तौर पर उसने कहा है जी 24 अगर यूजर एंटर करे तो ये 4 कॉम्बिनेशन डिस्प्ले कर दे। 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये इसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आंसर आए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और इसको हमने परफॉर्म किया है, इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो 3 वेरिएबल लिए हैं जी हमने, एन, आई, जे, और एक वेरिएबल लिया एस इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम है, हमें नंबर चाहिए जो यूजर है मैंने, जिसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हमने निकालने हैं। तो यूजर से सबसे पहले हमने सी आउट करके यूजर को बताया है इंटर नंबर, और सी इन करके यूजर से कीबोर्ड के रूप से हमने वैल्यू ले ली है। उसके बाद आपने सी आउट करके जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ नंबर, ये एन लिख दिया, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आर, ये डबल कोटेशन में लिखा है, ये एस्केप सीक्वेंस है, ये न्यू लाइन के लिए है कि इसके बाद लाइन चेंज कर दे, जैसे ये लाइन प्रिंट हो इसके बाद लाइन जो है वो नई आ जाए। तो हमारी मेन फोकस करने का काम यहाँ से शुरू होता है। पहला फॉर लूप जो है जिसका काउंटर वेरिएबल आई है, इसको एन से शुरू किया है। एन जो है वो फॉर एग्जांपल 24 ही एंटर हुआ। आई इज ग्रेटर और इक्वल टू एस, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो 24 से शुरू किया है, ग्रेटर और इक्वल टू एस, एस को आपने 1 रखा है। ठीक है, तो एस को आपने 1 रखा है तो 24 इज ग्रेटर देन 1। तो मैक्सिमम वैल्यू से आपने शुरू किया है, इसका मतलब आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ इसको लेके आएंगे। तो आई माइनस माइनस मतलब हर बार जब एक्सटर्नल लूप चलेगा तो आई की वैल्यू एक स्टेप डिक्रीज होगी, आपने डिक्रीमेंट किया है इसमें। तो आई की वैल्यू जब हर बार 1 स्टेप डिक्रीज होगी तो 24 होगा, फिर 23 होगा, फिर 22, 21, 20 एंड सो ऑन। अब आप इनर लूप की तरफ आते हैं जी। इनर लूप में आप देखें फॉर जे काउंटर वेरिएबल है, उसको मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू किया है और जे को 24 तक लेके जाना है, और जे की वैल्यू को हर बार एक एक स्टेप आपने बढ़ाना, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। आपने ऊपर से कम करते जाना है, दूसरे वेरिएबल को नीचे से बढ़ाते जाना है, और हर बार मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या 24 आंसर आता है।
या जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया था क्या वो आंसर में मिलता है। तो ये वेरीफाई करने के लिए कि वो आंसर मिलता है कि नहीं, इफ कंडीशन लगाई है हमने। इफ कंडीशन को अगर आप देखें तो इसमें लिखा आई और जे को मल्टीप्लाई करें, अगर उसका आंसर उस नंबर के बराबर आ जाए जो यूजर ने एंटर किया है तो सी आउट कर दे आई मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, आई और जे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दे और उनके दरमियान स्टेरिक जो है ये डबल कोटेशन में लिखा है इसको शो करवा दे कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वही नंबर जो है वो मिलेगा जो यूजर ने एंटर किया है। तो ये दोनों नंबर मिलके उसके जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं वो कहलाएंगे। ठीक है, रेपिटेशन को रोकने के लिए उसने ये एक इजाफी स्टेटमेंट लगाई है कि एस की वैल्यू जिसको 1 से शुरू किया है इसको एक एक स्टेप करके बढ़ाता जाए ताकि एक्सटर्नल लूप जो है वो वैल्यू को 2 बार प्रिंट ना करवाए। ठीक है, ताकि 50% पे आगे उसको रोक दे, मतलब 24 है तो 12 पे आके रोक दे, उससे ज़्यादा उसको कम जो है वो ना करे। ओके तो अब इसको जो है वो चेक करते हैं जी। आई जो है वो 24 है, कंडीशन ट्रू है, राइट, तो कंट्रोल इनर लूप पे चला जाएगा। जे इस टाइम 1 है, राइट, कंडीशन में आ जाएं जी। आई 24 जे 1, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 24। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सी आउट कर दे कि 1 और 24 जो है वो प्रोडक्ट कंपोनेंट में 24 है। तो ये तो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी एक स्टेप। इनर लूप में पूरा चलना है, 1 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू 24। आपको पता है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 1 ही 24 हो सकता है, इससे बड़ा अगर कोई नंबर होगा तो उसका आंसर 24 नहीं आएगा। तो सारी बाकी वैल्यू जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो एन की वैल्यू 1 स्टेप डिक्रीज होगी, एन की वैल्यू 24 से कम होगी, क्या होगी 23। 24 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इंटीजर से, तो 23 को अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 नहीं मिलता। तो इस केस में आपको जो है वो कुछ भी आउटपुट पे नहीं मिलेगा। फिर 22 पे देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 21 पे देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 20 पे कुछ नहीं मिलेगा, 18, 19, 18, 17, 16 आपको अगर कुछ मिल सकता है तो वो 12 है। तो आई की वैल्यू जब 12 होगी तो वहां पे जाके जो है आपको ये मिलेगा 12, और जहां पे जे की वैल्यू जाके 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब जाके 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 आता है। तो जब आई 12 हो जाएगा और जे जो है ये 2 होगा तो आपको जो है वो प्रोडक्ट कंपोनेंट मिल जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और स्क्रीन पे आपको जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। जैसे ही ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो एस की वैल्यू में आप 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर देंगे, जिस जे के लिए आपने ये अचीव किया है, 2 के लिए अचीव किया है। तो अब आपका लूप 2 से ऊपर ऊपर ही रहे, 3 तक रहेगा। पहला एक्सटर्नल लूप लिखा है ना आपने, आई ग्रेटर और इक्वल टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें एस की वैल्यू जो है अब आपने 3 कर दी है। तो इस तरह 12 से आप वापस आते हैं फर्दर। 12 से नीचे आए जी 9। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 नहीं मिलता। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलता है। तो आई की वैल्यू जब 8 होगी और जे की वैल्यू जब 3 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपको स्क्रीन पे 8 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब जे की वैल्यू में फर्दर एक ऐड हो जाएगा तो ये एस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और कंडीशन दोबारा एक्सटर्नल लूप पे आ जाएंगे। इंटरनल लूप कंप्लीट चला है लेकिन आपको आंसर करेक्ट जो है वो किसी एक ही नंबर पे मिल सकता था, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ही सिर्फ वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसका आंसर 24 है। बाकी 8 को 24 नंबर्स में से किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 अचीव नहीं हो सकता। ठीक है जी, वैल्यू को फर्दर डिक्रीज करते जाएं आई की। 8 से 7 करें, 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, आपको 24 नहीं मिलेगा। तो फर्दर एक स्टेप डिक्रीज करें जी, 6 आ गया जी, तो 6 पे जाके आपको फिर से ये मिलेगा। ठीक है, तो 6 पे जाके आपको जब ये मिल जाएगा तो अब आप देखें कि आप इसकी वैल्यू जो है इसमें एक ऐड करेंगे।
एस की वैल्यू एक स्टेप बढ़ जाएगी तो यहाँ जाके आपका जो एक्सटर्नल लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। 6 के बाद अगली जो वैल्यू आएगी उनके लिए फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आखिरी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई वैल्यू आती तो वो होती 4 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो फिर ये रेपिटेशन होती है प्रोडक्ट कंपोनेंट की। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को अवॉइड करने के लिए या 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को अवॉइड करने के लिए एक्सटर्नल या आउटर लूप में आपने ये कंडीशन लगाई है, ताकि एस की वैल्यू को आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज करते जाए, ताकि जिस जे के लिए आप टारगेट अचीव कर चुके हैं उस जे की वैल्यू में आप ऐड कर दें, ताकि आप उससे अगली वैल्यू जो है वो देखें। 1 के लिए कर चुके हैं, 2 के लिए कर चुके हैं, 3 के लिए कर चुके हैं, 4 के लिए कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वैल्यू जो है वो ना आए। तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे इतने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट कंपोनेंट जो इसके हो सकते हैं वो नजर आ जाएंगे। इसी तरह हम एक और सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। तो ये आउटपुट पैटर्न जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करके। सादा सा प्रोग्राम है, इसमें 3 डिफरेंट सी आउट स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इसने पहले प्रिंट करवाना 1 इज इक्वल टू 1, फिर इसने प्रिंट करवाना 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, फिर इसने प्रिंट करवाना 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अच्छा, आप टोटल लाइनें देख लें इसकी कितनी हैं जी, 5 लाइन्स हैं। तो हमारा आउटर मोस्ट लूप जो है वो 5 टाइम रिपीट होना चाहिए। कहाँ से शुरू होना चाहिए जी, वो 1 से शुरू होना चाहिए आउटर लूप। तो ये आप देखें, सबसे पहले इसने सी आउट 1 कर दिया, क्योंकि हर लाइन में सबसे पहले 1 प्रिंट होना है। उसके बाद उसने सम, इनिशियल जो सम आया है वो 1 था, तो सम को वही इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी 1 के बराबर, ठीक है। जे को आपने जो है वो, अब ये सेकंड लूप है, जे को 2 से शुरू किया है, जे लेस आर इक्वल टू आई, ठीक है। जे लेस आर इक्वल टू आई है या नहीं है ये हमने चेक करना है। अब आई को आपने 1 से शुरू किया है, तो इस सूरत में ये कंडीशन तो फॉल हो जाएगी, इंटरनल लूप में जाएगा ही नहीं प्रोग्राम का कंट्रोल। तो अगर प्रोग्राम का कंट्रोल इंटरनल लूप में जाएगा ही नहीं, तो ये दोनों जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट और सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इंटरनल लूप की बॉडी खत्म हो गई, इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो सम की जो शुरू में वैल्यू थी वही आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आ जाएगी, तो ये 1 आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ नजर आ जाएगा। दोबारा से जो है वो आउटर लूप पर आएंगे। आई की वैल्यू जो है वो 1 से एक स्टेप बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने 1 को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, ये पहला 1 हो गया जी। आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने जे की वैल्यू लेनी है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। आपने प्लस का साइन सबसे पहले प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, ठीक है। फिर सम को अपडेट करना है, पहले 1 था, अब उसमें J2 जो है उसको ऐड कर दें, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा जी ये, ठीक है। तो सम को नई वैल्यू मिल जाएगी जी 1 प्लस 2, और लूप सारा चलेगा जी। एक ही बात चल सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास आई की वैल्यू 2 है, तो सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये J प्रिंट हुआ, J की वैल्यू 2 थी, और इन दोनों का सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा जब दोनों लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह आप इसको रिपीट करवाते रहें, तो पूरी की पूरी ये जो आपको आउटपुट पैटर्न नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि 3 डिफरेंट सी आउट स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे एंड लाइन सिर्फ इसके अंदर लिखा है, तो जब तक आप एंड लाइन नहीं लिखते लाइन चेंज नहीं होगी, इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगी, और जब आखिरी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी तो उसके बाद लाइन ने चेंज होना है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रही है ये इजीली अचीव की जा सकती है। आप तो ये सोच रहे होंगे कि 3 डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, तो पहले 1 लिखा हुआ है, फिर इक्वल लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है मुख्तलिफ लाइन में, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब तक आप बैकस्लैश न्यू लाइन नहीं लिखते या जब तक आप एंड लाइन नहीं लिखते लाइन चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आपको सारा रिजल्ट जो है वो एक ही लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। तो फाइनली हमारा आखिरी प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1, 2 एंड 3। तो एक प्रोग्राम लिखना है 1, 2 और 3 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन इसने डिस्प्ले करवाने हैं नेस्टेड लूप्स को इस्तेमाल करके। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल आपने 3 लूप्स इस्तेमाल करने हैं।
3 नंबर थे, तीनों के लिए अलग अलग लूप्स इस्तेमाल करने हैं। और लूप्स में 3 काउंटर वेरिएबल यूज होंगे। एक को आप आई नाम दे लें, दूसरे को आप जे नाम दे लें, तीसरे को आप के नाम दे लें। तीनों लूप्स में 3 बार रिपीट होना है। हर नंबर पे, हर डिजिट पे, 0 पे, 10th पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे नंबर ने 1 भी होना है, 2 भी होना है, 3 भी होना है, ताकि आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो अचीव कर सकें, इनके जो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 नेस्टेड लूप्स हमें यहाँ पे नजर आएंगे। तो हमने जैसे शुरू में कहा था कि आप एनी नंबर ऑफ लूप्स को जो है वो नेस्टेड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए हमने यहाँ पे 3 लूप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और सबसे जो इनर लूप है, इनर मोस्ट लूप जो आपको नजर आ रहा है, इसकी सी आउट स्टेटमेंट में आपने आई को भी, जे को भी और के को भी प्रिंट करवा दिया। तीनों लूप बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ वेरिएबल का नाम डिफरेंट है। जैसे आउटर लूप को अगर आप देखें, आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन आपने की है, आई लेस आर इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस एक एक का इंक्रीमेंट देना है, तो ये लूप ने 3 बार रिपीट होना है। अब अगर आप जे की बात करें तो जे इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, जे लेस आर इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस, ये भी जाहिर है 1 होगा, जे फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो इसमें भी 3 बार रिपीट होना है। बिल्कुल इसी तरह फॉर के इज इक्वल टू 1, के लेस आर इक्वल टू 3, के प्लस प्लस, तो के ने 1 से शुरू होना है, 1 के बाद 2 होगा, फिर 2 के बाद 3 होगा, तो इसमें भी 3 बार रिपीट होना है। तो एक चीज़ जहन में रखने वाली है, सिंपल है और हमेशा एज इट इज इम्प्लीमेंट होगी नेस्टेड लूप के अंदर, कि एक्सटर्नल लूप जब एक बार चलता है तो इंटरनल लूप मुकम्मल चलता है, उसकी जितनी पॉसिबल आइटरेशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लूप आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो जे की वैल्यू भी 1 होगी। के इसका इनर मोस्ट लूप है, के की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी। ठीक है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट लूप है जे, इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आना है, तो इसकी वैल्यू 1 से चेंज होके बन जाएगी 2, तो अब आपके पास अगली वैल्यू आएगी 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद जे की वैल्यू ने फर्दर एक स्टेप इंक्रीज करना है, तो जे की वैल्यू अब बनेगी 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू अभी भी 1 है, ये बात ध्यान में रखें, आई की वैल्यू स्टिल 1 है, तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। जे की वैल्यू 3 हुई है, तो ये बनेगा 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3। ये जो तीसरे नंबर पे 1 2 3 आ रही है, ये के की वैल्यू है। जो इंटरमीडिएट दरमियान में हम लिख रहे हैं, ये जे की वैल्यू है। जो पहले नंबर पे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है आपके पास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लूप में 3 बार चलना है, इंटरमीडिएट में फिर 3 बार चलना है, ये इसके 9 कॉम्बिनेशन हो गए, और सबसे इंटरनल लूप में 3 बार चलना है, टोटल 27 कॉम्बिनेशन हो गए। तो आपको स्क्रीन पे टोटल 27 वैल्यूज जो है वो नजर आएंगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर हैविंग दिस मीटिंग। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप इंटरेक्टिव सेशन में भी पूछ सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। सर पहले प्रोग्राम में हमने एस इज इक्वल टू 1 लिया है और नीचे एंड पे लिखा है एस इज इक्वल जे प्लस 1। जब जे में 2 पुट किया तो जे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमने तो इनिशियल कंडीशन एस इज इक्वल टू 1 रख लिया, तो फिर इससे क्या कोई फर्क तो पड़ जाएगा सर? तो थोड़ा सा इस पे गौर करें, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आउटर लूप की बात करें, आई की कंडीशन जो है ना वो हम फिक्स नहीं रख रहे, वो बार बार चेंज हो रही है। एक्सटर्नल लूप पे जो कंडीशन हमने लगाई ना वो बार बार चेंज हो रही है। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। आई को आपने 24 से शुरू किया है, आई को हमने 1 से शुरू किया है, 24 से शुरू किया है। आप इसकी वैल्यू को 1 1 स्टेप कम कर रहे हैं, राइट? तो इसकी वैल्यू कम होके कहाँ तक जा सकती है? 1 तक जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 24 से कम होती होती 1 तक जाएगी, तो जैसे यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 भी आ जाएगा। फिर जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी आ जाएगा।
हम चाहते हैं कि जो वैल्यू जे हासिल कर ले वो आई को ना मिले, ठीक है। ठीक है ना, ताकि एक ही चीज दो बार रिपीट ना हो। तो इसलिए आपने कंडीशन जो है वो फ्लोटिंग रखी है, वो जे के हिसाब से एडजस्ट हो रही है खुद ब खुद, ठीक है, ताकि एक ही वैल्यू दो बार जो है वो रिपीट ना हो। जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी के जहन में? और सर हमने i इक्वल टू n किया है, इसमें अगर i n के इक्वल हो जाए तो फिर भी तो वैल्यू तो रिपीट होगी। आई एन के इक्वल हो? यस सर, हमने ऊपर कंडीशन लिखी है i इक्वल टू n, जी पहले जी। कंडीशन फॉर i। एन कितना है हमारा? n 24 होगा सर, अगर i 24 हाँ है तो n भी 24। जी जी बिल्कुल। फिर इशू क्या हुआ? फिर सर हमने हमने लिखा इफ i क्रॉस j, फिर n के इक्वल हो जाएगा, ये कैसे होगा सर? 24 हमने मल्टीप्लाई पहले बाय 1 i को कितना होता है? 24। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो गया ना, 1 के साथ तो किसी भी नंबर सर, को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है आपको। पहला सही होगा। जी, कोई और सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन फॉर एनी अदर एग्जांपल? चलें इसको पढ़िएगा आप फर्दर, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस मीटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।